Assalamu alaikum students of class 3. Today is Thursday, it's 9th of September 2021 and I'm sure that you must remember that we had started with unit number 4. Can someone tell me the name of this unit? What was that? She had just started in her last lesson. It was? Yes, rubbish and recycling. Thank you, Zainab. What is rubbish? We'll tell you. Shahan, can you tell me what is rubbish? हाँ, पूरा होता है, लेकिन कैसा? Yes, the things which are unwanted. जो हमें नहीं चाहिए ना घर में, खराब पड़ी है और हम संभाल के बैठे हैं, that is rubbish. We have to throw it away or give it to someone who can reuse it. Right? Who was the boy who threw a can in the park? Saira, can you tell me the name of that boy? It was Ramesh, exactly. Ramesh threw a can in the park. He just threw one. But the other week he found hundreds of cans around his, because he was the first one who threw a can. And then people started throwing empty cans and paper bits over there. They thought that it's the place to throw rubbish or litter. Right? And what did they do at the end of that story? It was an interesting one, by the way. Taha? Yes, they collected things which were thrown in the park by other people and they made the park clean again. Because both of them agreed that only the clean thing or clean place looks beautiful and it's worthy of playing in. है ना? अगर गंदी जगह होगी आप खेलना या बैठना या वहाँ खाना या वहाँ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे? Would you like to sit over there either? No, not at all. गंदी जगह पे तो हम जाते भी नहीं है ना, तो हम गंदगी फैलाते क्यों हैं भाई? अगर गंदी जगह पे हम बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वहां बैठ के काम नहीं कर सकते, तो why to throw things away like that? है ना? इससे आप लोगों ने कुछ सबक सीखा है, घर को ठीक रखना सीखा है, मामा की हेल्प करनी सीखी है नहीं? गुड. अच्छा, गर्ल्स के हाथ ज्यादा उठ रहे हैं, बॉयज के नहीं उठ रहे. बॉयज, You also have to have the same training. ये सिर्फ लड़कियों का, ये मामा का काम नहीं है, हम सब का काम है. Okay, let's start again with our reading session. We'll be opening page number 24 today and we'll be starting from what is litter. Let's switch to the book now. Page number 24. As we have just discussed in our recap session, what was rubbish and what is litter, let's read it on the book that what they are going to tell us about litter now, okay? What is litter? Litter is anything that is left lying in open places, such as parks, streets or beaches. It could be a drink can or bottle, a chocolate wrapper, some food or paper. अब लिटर क्या है? लिटर है एक्चुअली वो गंदगी जो हम खुली जगहों पे छोड़ आते हैं, जैसे रामेश ने किया था, कैन है ना, फेंक के आ गए थे. पानी वाली बॉटल्स होती हैं जो हम जहाँ पीते हैं वहीं फेंक के आ जाते हैं. टिश्यूज़ होते हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं वहीं फेंक देते हैं. पेपर्स, रैपर्स, चॉकलेट के, खाने के, जो खाना बर्गर वगैरह बच जाता है हम नहीं खाते, हम वहीं फेंक के आ जाते हैं ना, दैट इज़ लिटर. एक्चुअली लिटर इज़ वेरी डेंजरस.
Now see this picture. It's very motivating. It's very motivating. See. The girl, student from a school, clean up a beach near Karachi. अब बीच का पता है? कोई गया है आप में से? समंदर पे कोई गया है? हाँ जी, जो लोग समंदर पे गए हैं ना, उन्होंने देखा होगा कि जो साहिल समंदर होता है वो बहुत गंदा होता है। जो वहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहीं सामान, वहीं सारा अपना लिटर छोड़ देते हैं और खुद चले जाते हैं घरों को, है ना। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल के कराची के, वो क्या कर रहे हैं? वो साहिल समंदर को साफ कर रहे हैं, सारा लिटर समेट रहे हैं। ये देख रहे हैं बड़े बड़े शॉपर्स, है ना, ये लिटर बैग्स, इनमें वो सारा गंदगी उठा के ना पूरे साहिल समंदर से जितना वो बेचारे कर सकते थे उन्होंने किया, समेटा और उसको फिर प्रॉपरली डिस्पोज किया। यहां देखें, ये ढेरों ढेर रबिश इस पिक्चर में, सी। So this is how we pollute the environment. This is how we make our environment dirty and dangerous for all of us to live in. This is how we pollute. सिर्फ गाड़ियों का धुआं ही नहीं है पोल्यूशन फैलाने के लिए, हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस पोल्यूशन के लिए। ये सारा जो कूड़ा है, सारा rubbish and litter is a pollution. It is adding dirt. It is adding pollution in the environment. It's making our environment dirty, dangerous to live in. It's not healthy at all to live in a polluted environment. हम गंद मचा रहे हैं ना, ऐसे गंदगी फैला रहे हैं, तो हमारे अंदर ही जा रहे हैं सारे जर्म्स, ठीक है। What is rubbish? रबिश क्या है? रबिश हमने अपने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था। What is rubbish? अभी शुरू में भी किया है। Rubbish is anything we no longer need or want, such as old toys or a broken TV or an old computer. रबिश हर वो चीज़ है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें नहीं चाहिए, ज़रूरत की नहीं है अब हमें नहीं चाहिए। पुराने खिलौने, टूटा टीवी, पुराना कंप्यूटर जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो हम उसको क्यों रखें संभाल के, हम उसको क्यों ना डिस्पोज करें प्रॉपर्ली, है ना। What problems does litter cause? अब लिटर की वजह से, गंदगी की वजह से क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? If litter is not picked up, अगर कूड़ा नहीं उठाया जाता, इट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, ये बहुत से मसाइल का बायस बन सकता है। इट मेक्स आवर स्ट्रीट्स, पार्क्स एंड बीचेस लुक मेसी। सबसे तो इम्पॉर्टेंट ये कि ये हमारी गलियों को, पार्क्स को और ये जो बीचेस हैं हमारी, इनको मेसी लुक देता है। मेसी होता है जैसे बिखरी हुई हर चीज़ होती है। अगर घर में, हमारे कमरे में, हमारे बेडरूम में हमारे टॉयज बिखरे हुए होंगे तो वो मेसी नहीं लगेगा, हमें अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगता है कि बेडशीट ऐसे एक साइड पे पड़ी हुई हो, तकिए बिखरे, एक तकिया नीचे गिरा, एक बेड पे पड़ा, किताबें बिखरी हुई, ऐसा कमरा किसको पसंद है? लेट मी गेस, ऐसा कमरा किसको पसंद होगा? नहीं, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनीवन्स नेम, लेकिन आपको पता है किसको पसंद होगा, जिसका टेबल मेसी होता है हर वक्त क्लास के अंदर, समझ गए ना आप? अच्छा जी, इट कैन किल एनिमल्स दैट ईट इट और गेट टैंगल्ड अप इन इट। ये उन जानवरों को मार सकता है जो इसको खा लें, या इसमें फंस के भी बहुत एनिमल्स मर जाते हैं। आपको पता है, जो हम शॉपिंग बैग्स फेंक देते हैं ना जगह जगह पे, इससे उनका दम घुट जाता है। कोई छोटा मोटा एनिमल, कोई बिल्ली, कोई पपी या कोई ऐसा जानवर इनमें फंस जाए तो वो तो मर जाएगा ना, उसको सांस नहीं आएगी, तो उसमें उलझ जाए, जैसे का धागे कोई फेंक दे, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इकट्ठी होकर पड़ी हों जिसमें जानवर जाए अंदर और बेचारा उसका दम ही घुट जाए गरीब का। ये बुरी बात है ना। इट कैन किल एनिमल्स, इट
इट पोल्यूट्स वाटर एंड कैन मेक अस इल। अब ये गंदगी जो सारी हम जहां जहां बिखेर आते हैं ना, अल्टीमेटली वो जाती है पानी में चली जाती है, और वो पानी को गंदा करती है और हमें बीमार बना सकती है गंदगी। और पानी, गंदा पानी आप पी सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ना देखते हुए भी हमारे पानी में पोल्यूशन है, हमारे पानी में पोल्यूटेंट्स ऐड हुए हुए होते हैं हमारी अपनी ही वजह से। जो फैक्ट्रीज का निकलता है ना धुआं, वो हवा को गंदा कर देता है। जो उनकी वेस्ट निकलती है वो पानी में शामिल हो जाती है, और वो सारा जो पानी है हमारी सेहत को खराब करता है, पीने के काबिल नहीं रह जाता वो पानी। इट अट्रैक्ट्स रैट्स, फ्लाइज, cockroaches and mosquitoes that can cause diseases। ये चूहों को, मक्खियों को, कॉकरोचेस लाल बेगों को, मॉस्किटोज और मच्छरों को अट्रैक्ट करती है गंदगी। ये गंदी चीजें हैं ना, गंदगी पे ही आएंगी। कभी आपको गंदे ढेर के, कूड़े के ढेर के ऊपर कोई प्यारा सा तोता, ये प्यारी सी चिड़िया, ये प्यारा सा बर्ड बैठा हुआ नहीं नजर आएगा। आपको गंदगी के ढेर पे हमेशा गंदी चीजें ही नजर आएंगी, उसमें चूहे ही नजर आएंगे, उसमें से कीड़े निकलते ही नजर आएंगे। ऐसा ही है ना। तो जब ये रैट्स, फ्लाइज, कॉकरोचेस या वहां से गंदगी खा पी के हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, मॉस्किटोज को हम रोक सकते हैं, स्प्रे करके हम तसल्ली कर लेते हैं। मक्खियों को हम घर में रोक सकते हैं, स्प्रे करते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा इनकाउंटर इनसे हो ही जाता है, हमारा सामना इनसे। तो वो इसीलिए हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं ना, कि ये गंदगी फैलाती हैं। इसीलिए हम घरों में स्प्रे करते रहते हैं कि ना ये घरों में आए, ना गंदगी फैलाएं, क्योंकि ये गंदगी के ढेरों पे जाके बैठते हैं, गंदगी खाते हैं, और फिर वहां से जर्म्स उठा के हमारे घरों तक लेके आते हैं, एंड दे गेट वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। What's the fact? It's a fact. Every year, 45,000 tons of plastic is dumped in the world's oceans. This plastic kills thousands of seabirds and animals. देखिए जरा हम क्या कर रहे हैं। हर साल 45,000 टन्स प्लास्टिक के जो होते हैं ना, प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की क्रॉकरी, ग्लासेस वगैरह, ये हम फेंकते हैं और वो दुनिया के समंदरों की तरफ पानी ले जाता है। समंदरों में दाखिल हो जाती है ये सारी गंदगी, और इस प्लास्टिक की वजह से हजारों परिंदे और समुद्री परिंदे और समुद्री जानवर मर जाते हैं। देखा कितना जुल्म करते हैं हम इन पे बेचारों पे, है ना। सो बट इट्स अ फैक्ट। If you have time, please go on YouTube and watch the documentaries related to sea life and the threats to sea life which human produce for them. Then you'll come to know that how are we responsible for destroying this natural beauty, and we are destroying their lives with our negligence, right? Okay, moving on to page number 25. Page number 25, don't be a litter bug. कूड़ा फैलाने वाले मत बने प्लीज, गंदगी फैलाने वाले मत बने। Many things today, such as drink cans or plastic bags, are made to be disposable. This means they are made to be thrown away, but we do not have to. बहुत सी ऐसी चीजें जैसे कैंस में हम ड्रिंक्स पीते हैं या प्लास्टिक बैग्स में हम चीजें लेते हैं, वो डिस्पोजेबल हैं। यानी डिस्पोजेबल का क्या मतलब है? इस्तेमाल करें और फेंक दें, मतलब उसको दोबारा हम यूज नहीं करते। दिस मीन्स कि ऐसा, इसका मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ऐसे ही फेंक दें। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग आवर रबिश अवे, वी कैन रिड्यूस इट, रीयूज इट एंड रिसाइकल इट। हम क्या कर सकते हैं इस रबिश को? वी कैन रिसाइकल, वी कैन रिड्यूस, वी कैन रीयूज। इट इज कॉल्ड 3 R's। सेव द अर्थ, लव द अर्थ। Here's how. कैसे भाई, कैसे रिड्यूस करना है, कैसे रीयूज करना है, कैसे रिसाइकल करना है। रिड्यूस मीन्स हैविंग लेस रबिश इन द फर्स्ट प्लेस। रिड्यूस का मतलब है कि हम पहले ही उतनी चीज लें जितने की हमें जरूरत है, एक्स्ट्रा चीजें ही ना खरीदें, अपनी जरूरियात को रिड्यूस करें, कम करें। Here are some ways to reduce your rubbish. ऐसे हम अपना रबिश कम कर सकते हैं। कैसे? पढ़ते हैं हम। Buy only what you really need. सिर्फ वो खरीदें जिसकी वाकई जरूरत है, जरूरत से अलग चीज ना खरीदें।
बाय थिंग्स दैट विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम एंड कैन बी रिपेयर्ड, वो चीज़ें लें जो ज़्यादा वक्त चलें और जिनको दोबारा से ठीक भी कराया जा सके। बाय थिंग्स दैट हैव लिटिल और नो पैकेजिंग, ऐसी चीज़ें लें जिनकी पैकिंग बहुत कम हो या ना हो उन पे पैकेजिंग, क्योंकि पैकिंग का हमने क्या करना होता है, वो वेस्ट ही बनती है ना अल्टीमेटली। शेयर थिंग्स यू डोंट यूज वेरी ऑफन विद समवन एल्स, जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते उनको दूसरों के साथ शेयर कर लें, उनको दे दें किसी को। बाय थिंग्स दैट कैन बी रीयूज इन सम वे, ऐसी चीज़ें खरीदें जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके सम वे और अनदर। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को इतने मुश्किल नहीं है जो हम फॉलो ना कर पाए। कम अप टू पेज नंबर 26। रीयूज, रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल। रीयूज मीन्स फाइंडिंग अदर वेज ऑफ यूजिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। रीयूज का ये मतलब है कि उस चीज़ को हम किसी और तरह से इस्तेमाल कर लें, उसको फेंकने की बजाय उसको हम किसी और तरह से इस्तेमाल कर लें। मैन बाइंग ओल्ड न्यूज पेपर्स इन ग्लास फ्रॉम हाउसेस, ये देखें, ये आदमी जो है, ये हमारे भी एक एक्सपीरियंस में होती है ना ये चीज़ें, पुराने न्यूज़पेपर्स और ग्लास वगैरह लोग खरीद के ले जाते हैं ये लोग। Here are some things you could do, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। Sell or give away things you no longer want, बेच दें, ये ऐसी चीज़ें दे दें किसी को जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। Swap things you no longer want for something you do want. Try this with your friends, हम अपने फ्रेंड्स के साथ ये कर सकते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए और उसे चाहिए उसको दे दें, और जो चीज़ उसे नहीं चाहिए हमें चाहिए हम उससे ले लें, स्वोपिंग कर लें, है ना, कर सकते हैं नहीं, अच्छे फ्रेंड्स के साथ हम कर ही सकते हैं। मेक न्यू थिंग्स आउट ऑफ ओल्ड थिंग्स, नई चीज़ें बना लें पुराने वालों से। यूज ओल्ड प्लास्टिक कंटेनर्स टू स्टोर थिंग्स, पुराने प्लास्टिक की कंटेनर्स जो हैं वो हम चीज़ें संभाल के, जैसे हम रखनी होती हैं, किचन में रखनी होती हैं, उसमें इस्तेमाल करें हम। यूज राइटिंग पेपर ऑन बोथ साइड्स, पेज के दोनों तरफ लिखें, उसको ज़ाया ना करें हम, ये ना हो आधे पेज पे लिखें ज़ाया, आधे पेज पे लिखें ज़ाया, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, पेज के दोनों साइड पे लिखना सीखें। Don't use plastic bags when you go shopping. Use a cloth bag that can be used many times. प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल मत करें जब शॉपिंग पे जाते हैं, कपड़े का बैग लें जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और आजकल वैसे ही काफ़ी ट्रेंड बन गया हुआ है, जब हम कहीं ग्रॉसरी वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो कपड़े का बैग ही देते हैं हमें, ताकि हम दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, This house has been made from old foil and bamboo. It was made for people who lost their homes in the floods. ये उन लोगों के लिए एल्युमिनियम फॉयल, पुरानी एल्युमिनियम फॉयल और बैम्बू वुड से बनाया गया घर है, जो कि सैलाब में जिनके घर फ्लड्स में ख़त्म हो जाते हैं ना, ज़ाया हो जाते हैं, उनके लिए बनाया गया टेम्पररी हाउस। गुल बहाओ is a group working in Karachi. They collect waste from schools, homes and offices. They use the waste to make new things such as the house above. गुलबहाओ एक ग्रुप है जी कराची में जो काम करता है, वो वेस्ट कलेक्ट करते हैं स्कूल्स एंड होम्स एंड ऑफिसेज, और उस वेस्ट से वो फिर नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे उन्होंने ये घर बनाया हुआ है सैलाब ज़दा लोगों के लिए। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड आई थिंक एक्टिविटी टू डू टू रीयूज थिंग्स अगेन। Here is an activity. Look at these things. ये हैं जी, एक कार्टन है हमारे पास, एक बॉटल है, कैप्स हैं, स्ट्रिंग है। Think of a toy you could make from any of these things. Draw or make your toy. अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हों घर पे, तो आप लोगों के पास अगर घर में ये चीज़ें हों, आप कुछ बनाने की कोशिश करें खुद से, या इसको नोटबुक की ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करके मुझे भेजें, मैं देखूं आप लोगों के पास क्या आइडियाज आते हैं। ठीक है। Recycle means to use something that has already been made and use and make it into something else. Recycling का मतलब है कि जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर चुके हैं ना, जो बनी हुई थी फिर इस्तेमाल की और फिर अब हमने उससे कोई और चीज़ बना ली, उसको रिसाइकल कहते हैं। In this way, it can be used again. इस तरह से हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक बॉटल है, I have seen a very short video on YouTube in which they use this bottle, cut it into 2 equal halves and made it a pot, a plant pot. ठीक है, गमला बना लिया उन्होंने,
रिसाइकल कर लिया ना उसको, तो इसी तरह से प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, नई चीज बनाई जा सकती है उसमें से, राइट। Here are some things you can do. अब कुछ बातें जो आप कर सकते हैं. Buy things that have been made from recycled materials. ऐसी चीजें लें जो recycled material से बनी गई हों. Buy goods in containers that can be recycled, such as glass bottles or tin cans. ऐसे कंटेनर्स में मौजूद चीज़ें आप लें, ख़रीदें जो कि ग्लास बॉटल्स हों जैसे, या जैसे टिन कैंस हों जिसको आप रिसाइकल कर सकें, किसी न किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकें. Sort your rubbish and keep the things that can be recycled separately. Give them to the people who collect them. अपना जो रबिश है घर में मौजूद एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें, उनको सॉर्ट आउट करें और जो रिसाइकल हो सकती हैं उनको अलग कर लें और उन लोगों को दें जो इस रिसाइकलिंग के लिए चीज़ें कलेक्ट करते हैं, राइट. अब नीचे एक बड़ा कलरफुल सा प्रोसीजर उन्होंने बनाया हुआ है. How are cans recycled? Cans को कैसे रिसाइकल किया जाता है? This is how old cans are made into new cans. इस तरह से जी पुराने कैंस को नया बनाया जाता है. ये कोई साहब हैं, वो कैंस बिन में डाल रहे हैं. The cans are collected. Okay? The cans are squashed. They are put into big bales. Squashed का मतलब उनको प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, सुकेड़ दिया जाता है और फिर ऐसे उनको बड़ी बड़ी गांठ, बेल गांठ को कहते हैं, तो इस तरह से उनको पैक कर दिया जाता है. The cans are cut up into little pieces. फिर कैंस को मशीनरी के थ्रू छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है. The pieces are melted in a hot oven. और इन टुकड़ों को ये हॉट ओवन, आग की भट्टी में पिघलाया जाता है. The melted metal is poured into a mold to make bars. और फिर जो ये यहाँ से पिघल के लोहा बन जाता है ना कैंस, वो फिर उनको ऐसी लोहे की बार्स में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है. द बार्स आर रोल्ड फ्लैट. फिर इन बार्स के ऊपर प्रेशर से रोलर फेरा जाता है और ये शीट बन जाती है. द फ्लैट शीट्स आर मेड इनटू कैन्स अगेन. और उसी फ्लैट शीट से दोबारा कैन्स बन जाते हैं. इसलिए वो कह रहे हैं कि ड्रिंक कैन्स जो है ना वो ले लिया करें क्योंकि वो रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है. इंटरेस्टिंग है ना ये. इट्स अ फैक्ट. व्हाट इज अ फैक्ट? इट यूजेस लेस एनर्जी टू मेक थिंग्स फ्रॉम रिसाइकल मटीरियल्स एंड टू मेक देम फ्रॉम न्यू मटीरियल्स. वो कह रहे हैं कि ये कम सारी एनर्जी यूज होती है अगर हम चीज़ों को रिसाइकल मटेरियल से बनाना आसान है, नए मटेरियल से बनाना वो कहते हैं उस पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है. फैक्ट है जी. ये देखें, रिसाइकलिंग प्लास्टिक. प्लास्टिक कैन बी टर्न्ड इनटू मेनी थिंग्स. प्लास्टिक कैन बी टर्न्ड इनटू मेनी थिंग्स, ठीक है. प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक को भी मोल्ड किया जाता है ना, पिघला मेल्ट किया जा सकता है, इसलिए उसको भी हम लोहे की तरह बहुत सी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल बना सकते हैं. A factory in Lahore turns plastic into a material that looks like wood. They make outdoor seats from it. लाहौर में एक फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक को लकड़ी जैसे मटेरियल में चेंज कर देती है, मेल्ट करके चेंज कर देते हैं और फिर उससे वो बाहर रखे जाने वाले बेंचेस वगैरह बनाते हैं. ये देख रहे हैं ऐसे बेंचेस अमूमन हम पार्क्स में देखते हैं ना, तो ये लाहौर में एक फैक्ट्री है जो पूरे शहर से प्लास्टिक इकट्ठा करते होंगे और फिर उसको रिसाइकल करते हैं और वो फिर ऐसा सिटिंग मटेरियल या वुड मटेरियल बनाते हैं जो कि वुड की तरह होता है. ओके, सी अ सीट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक. लग तो लकड़ी की रही है लेकिन है ये प्लास्टिक की, रिसाइकल्ड प्लास्टिक की, ठीक है. इट इज एन इंटरेस्टिंग यूनिट. इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में काम भी करेंगे, रिटन वर्क करेंगे हम. प्लीज रीड इट अगेन एंड रीड आउट द स्टेप्स of reduce, reuse and recycle, how the things can be recycled. ये जो हमने कलरफुल सा एक देखा है, पढ़ा है ये सारा. You have to copy this recycling procedure, draw it in your notebook on the blank page, label it like this. It's been written with every step and color it properly and make it beautiful and then share its picture on Google Classroom.
ठीक है, रीडिंग आपने की है. दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट that you have to draw this picture on the blank page of your notebook along with these captions. Okay, the details which are being given with it. A process of recycling. Is it clear to all of you? Okay, Allah Hafiz.